Why could men? Why would men? Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. तब क्या बात कर रहा था मैं? क्या बात कर रहा था ये? क्या बात कर रहा था तू? अरे all I did was lie. ये मैं रील काट के डाल रही हूँ. हमें टाइम के लिए We listen and we don't judge. Judging in silence. और 5 साल में से एक रिलेशनशिप नहीं थी. This is not working. Pipe was not working. Okay. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Riri and you're watching Riri Rams. So finally after months I decided to shoot a video. और आज मेरे साथ मेरे दो अनमोल दोस्त हैं. अरे यार थोड़ा तो फन भी रखेंगे ना. हाँ थोड़ा तो फन रखेंगे तो गाली दे दो सीधा. क्या बोला इसने? दो अनमोल. Oh my god! So today we're with Shrey and श्रेष्ठ श्रेय बोल रही है भी फर्क नहीं पड़ता. भाई और ये हर दूसरी वीडियो में आ जाती है झलक. दूसरी वीडियो में हाँ नहीं तीसरी वीडियो तीन में से दो वीडियो में तो है भाई. ये तो होस्ट है तो होएगी. So आज we're gonna talk about mainly a male's perspective in a relationship. So since we are doing a male's perspective in a relationship, आप बताइए कि आप सिंगल हैं? Yes. Finally ये 5 साल बाद सिंगल हो गए. 5 साल और 5 साल में से एक रिलेशनशिप नहीं थी. सबसे लंबे टाइम के लिए We single. listen and we don't judge. Judging in silence. Bombastic side है. Literally judging. Bombastic side है. तो अब मैं सिचुएशंस पूछूंगी तुम दोनों से थोड़ी ठीक है. फिर मेरे को अब इससे मेल पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली इससे फीमेल पर्सपेक्टिव पर मैं चाहती हूँ कि पहले तू ही आंसर कर इस चीज का. ठीक है. हाँ कि जैसे ये डिस्टेंट वाली सिचुएशन थी तो तेरे को क्या लगता है फिर वो ज्यादा डीपली में कर देगा एक्सप्लेन. ठीक है. Okay, so suppose you're in a relationship and तुम लोग like you have been seeing each other for a few months. सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, but अचानक से he just starts being distant and he's not as affectionate as he was. So तेरा दिमाग सबसे पहले कहाँ जाएगा कि तू क्या करेगी, तेरा क्या रिएक्शन होगा और तू उसे कैसे कन्वे करेगी? मतलब I would honestly think कि the person is not interested in me anymore. And like that would be the first thing that would come in my mind. But लेकिन जैसे तू है तो मतलब not in a bad way. जैसे तू है अगर जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता ना तो तू ऐसे ये रिप्लाई करती कि he might be busy. तेरे ये रिएक्शन होते हैं. नहीं but कि see वो might be हाँ see वो तो it's like कि वो तूने बोला few months. तो अगर initially he is not busy, initially अगर वो होता है कि someone is not as like they are there but वो उतना frequently reply नहीं कर रहा है, वो जब when there is a sudden change तब वो दिमाग में सबसे पहले आता है कि okay maybe the person is not interested. अगर शुरू से ही वैसा होता है तो I feel कि for example I'm dating someone, अभी हमारी बात शुरू हुई है and वो अभी ही there is this कि वो चला जाता है and मेरे को काफी लेट टेक्स्ट आते हैं तो that would be the case कि maybe he is busy. but अब अगर वो काफी महीनों बाद हो रहा है एकदम से तब तो मुझे ये लगेगा कि maybe the person has lost interest. तो इसकी बातों से कितना एग्री करता है इस चीज? मतलब I think इसमें like दोनों स्पेक्ट्रम से अलग अलग है, like the male perspective and the female perspective. I would say अगर like थोड़े महीने हो गए then it is like the guys don't show interest at first. like उनको ऐसे लगता है कि like अब तो पट गई नहीं है. but the once that attachment thing happens and once a guy is comfortable, I think it's very hard for a guy to like just lose instant interest in a second or in an instant. ये तभी होता है unless like he found out something about the girl that is bothering him or he is being attracted to someone else. because ऐसे नहीं होता, like most of the cases में ऐसे नहीं होता. पर फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो रहा है हाँ. कि कुछ महीने बाद the guys has started acting weird, तो what is the reason behind it? What could be the probable reason behind it? My thing is like चाहे एक आदमी जितना भी बिजी हो ना, like प्रखर के प्रवचन में उसने बहुत चीज बोली थी, like an outside प्रखर के प्रवचन Nothing. So he said like a very good thing, like an outside world of a man is gonna get fucked, he's gonna get busy, he's gonna be stressed out, and that stress
will be relieved by talking to the divine feminine, like the divine feminine energy. तो उसके लिए चाहे वो जितना भी बिजी होगा ना, उससे अपनी लाइक जिस औरत है तो कंफर्टेबल है उसी से बात करना फिर स्ट्रेस रिलीवर होगा, उसका कंफर्टेबल से रिलैक्स होना. तो आई डोंट थिंक सो बिजी होगा. दैट ओनली हैपेंस व्हेन ही इज अट्रैक्टेड टू समवन एल्स, या जेन्युइनली कुछ अलग ऐसी चीज जिससे पता चली जिसको टर्न ऑफ हो गया, एक आ गया देन. बट ऐसे आउट ऑफ सडन तो सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज है. एंड आई फील लाइक कि मतलब ऐसे सिर्फ लड़कों में नहीं होता कि दे टेक आउट टाइम फॉर द पर्सन, लड़कियों में भी होता है. बिकॉज आई डोंट टेक आउट टाइम फॉर एवरी गाय जो मेरे को टेक्स्ट करेगा. इट्स जस्ट दैट वन पर्सन जिसके लिए इवन दो आई एम बिजी आई टेक आउट टाइम टू या Definitely. This is not working. Pipe was not working. Okay. Like at the starting, the girl is way more into the guys than the guys, like 100%. Like वो कहते हैं ना like. But I guess ये भी depend करता है. काफी केसेस में नहीं होता ऐसा. But like ऐसा दिखता है कि नहीं होता. But I'm telling you, अगर like if a girl genuinely likes a guy, वो कहते हैं ना woman in love is a very dangerous thing. But लेकिन वो अलग बात है. Starting भाई नहीं होता. Honestly वो तेरा perspective होगा. Love is a different thing और being attached because you have certain issues is a different thing. तो ऐसे होता हूँ कि मतलब starting में अगर you have some kind of trauma or anything और वो mostly तुम्हारे romantic relation या relationship in general नहीं reflect होता है, तो अगर लड़का starting, क्योंकि लड़के ऐसे ही करते हैं starting में पूरी attention देंगे वो, तो लड़कियां बहुत जल्दी attach हो जाती हैं कि ओ ये तो सब कुछ कर रहा है, he is the perfect guy that I ever wanted. तो उस चीज पे आके फिर लड़कियां attach होती हैं. जब वो relationship का tag आ जाता है. I think like it's like the weird thing in the main psyche that we love to chase, but the moment we got it, it's like we take it for granted, and that is like the worst like I would say trait of a guy. Like in like supposedly in my case, whatever happened, like that girl was way more into me at the starting of our relationship than I was into her. So इसलिए मैं कह रहा हूँ like a girl when the relationship tag happens, when you guys finally decide okay we are now gonna be together, वहीं चाहे इससे पहले जो male के efforts 100 हो और औरत के like 50 हो, that like complete dynamic 180 change हो जाता है. Make them change. Like क्योंकि I feel like ऐसे ही होना चाहिए. मतलब I feel इतना relationship इतनी जल्दी आना भी नहीं चाहिए. मतलब mostly बहुत rare से बचपन में होता था ना कि मैं और मोहित ये डिस्कस कर रहे थे कि बचपन में होता था ऐसे. मोहित हमारा एक फ्रेंड है तो हम बचपन में you just used to tell each other that you like each other and then you were in a relationship. But आजकल तो because that's what we saw in the movie. हाँ, और बचपन में ना I कुछ think होता भी Bollywood नहीं ने भी हमारे like जो relationship के वो है ना subconsciously बहुत fuck कर रहे हैं, बहुत fuck up कर रहे हैं. उसमें क्या होता है कि like सबको कुछ होता है, तुम्हारी आंखों से आंखें मिले और गाने बज रहे हैं, like चांद बड़ा दिखने लग गया है, बारिश हो रही है. That do happens, but that happens way down the line, like way down the rabbit hole. नहीं but again I think अगर butterflies तो initially ज्यादा रहती है. Butterflies की बात नहीं है, like जैसे वो कि पूरी दुनिया से ब्लर दिखने लग गया. जैसे वो okay, ठीक है. जैसे it builds up. हाँ, it builds up. कि like initially it just कि you are existing as two individuals, but as soon as you realize कि okay maybe Now this it's is the getting person. more deeper. हाँ वो emotional intimacy when it हाँ, hits, हाँ. तो उस टाइम पे लगता है कि okay like this is something else. बट फिर कभी कभार ऐसे भी होता कि पता कैसे चले कि कितने एफर्ट्स एक लड़की को डालने चाहिए और कब उसको रुक जाना चाहिए. Let's just say like in my personal opinion, I think like वो चीज वाला फैक्टर ना कभी हटना नहीं चाहिए. like what I have realized, like from my mistakes and like everything, even though वो चीज वाला फैक्टर हट जाना, I feel like a guy should never take a girl for granted. True. like क्योंकि it's like भाई you think that एक तो सोशल मीडिया की वजह से जो रिलेशनशिप्स के ना बहुत फकअप हो गए, because we like to be very honest we weren't supposed to ever see this many like baddies on Instagram वगैरह. baddies like we weren't supposed to see, and उसकी वजह से तुम्हें वो लगने लग जाता है कि like okay यार I can do better. हाँ इतने तो options है, इतने तो take more I है. think dating apps की वजह हाँ, से social media में जो भी है. सोशल मीडिया ने बहुत फकअप करा है. बट when you have this thought and you're like fuck it भाई जा रही है जाए, like
भाई नहीं फर्क पड़ता, but then when that person actually leaves, first तब एक कान हफ्ता फट ये गया भी है। like हाँ भाई it's fine, हाँ, जी रहे और हैं। मैंने ये भी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे ही होता है मोस्टली लड़कों के साथ कि जब तुम किसी रिलेशनशिप में हो तब जब ब्रेकअप हो गया तो लड़के तब स्टार्टिंग में बहुत वो होते हैं कि हाँ ठीक है हाँ। फाइन फाइन, But- और लड़कियों का बहुत स्टार्टिंग में हालत खराब हो जाती है, धीरे धीरे करके फिर उल्टा हो जाता है। Exactly, like the girls move on faster than guys because like I feel like this is because girls are more emotionally mature than guys and they deal with their emotions much पहले, better. हाँ। They Suppress नहीं करती they ना वो take it out, initially. they take it out, they vent And I out. think it's because of what we have. Like हमारे में emotional support हाँ. is the main thing, like the Like- backbone of a हाँ, friendship female वाला friendship. relationship. Right. लड़कों So it को- helps a अरे lot. it's like वो कहती कि अर्पित ने बात बोली थी ना ये कि मतलब लड़कों से इमोशन पूछो, कोई इमोशन ही नहीं है भाई, बंदी छोड़ गई, जॉब नहीं लग रही, बाल झड़ रहे हैं, कैसे चल रही है भाई, कट रही है भाई, कट रहा है भाई, चल रहा है भाई, बोलता है। And it's like it is facts, but like अगर बहुत कम ऐसे like male friendships होती है जिसमें तुम actually अपनी चीजें talk it out कर सकते हो without being made fun of. अच्छा Because- सुन, हाँ। like do you think क्या? हर एक लड़के की एक लड़की दोस्त होनी चाहिए? I would say as long as तुम्हारी significant other को problem नहीं है तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. I feel like it is very important to have this girl as a friend because you're gonna learn a lot from them. You're gonna have that like other like perspective. डिपेंड करता है वो लड़की भी कैसी है। हाँ. True. हम्म, So I'm glad to have this dumb bug as my friend and not the person who introduced me to her. ये मैं रील काट के डाल रही हूँ। Not the person who Imagine introduced if me that to goes her, up. but इसकी feed पे आ रहा है। ये पूरा डाल दूंगी। भाई डाल भाई, it's like भाई उस औरत की वजह से मेरा रिलेशनशिप इतना fuck up हुआ था भाई। और उस टाइम हम बात नहीं कर रहे थे तो लेकिन like थोड़ा इनसाइड है बट बहुत मतलब देर ऐसा नहीं होता कि हर लड़की इज ऑलवेज देयर, वो गर्ल्स होता है बहुत ज्यादा, बट some women are just हाँ, and not I think girls. your girlfriend knows। हाँ. हमारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बोल रही है ना। hands down अगर ये कभी ऐसे वायरल हो भाई, men always listen to your girlfriend भाई, like मैं बता रहा हूँ उनकी इंस्टेंट उनकी सबकॉन्शियस माइंड Right, ऐसे वर्क exactly. करता है कि भाई तुम रियलाइज करोगे फक भाई बंदी कितनी सही थी भाई, हमेशा सही बोलती थी, मैं था जो उसकी बात नहीं सुनता था। बट पता है दिस हैपेंस अदर वे अराउंड टू, जैसे सपोज इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप हाँ. और मेरे को मेरा बंदा बोल रहा है कि यार मुझे वो लड़का नहीं हाँ, पसंद, हाँ. तो वो exactly होता है ना, तो वो इसलिए- होता है, हाँ, there is तो- always that नहीं ये तो instinct. चीज है कि लाइक जैसे men can easily turn other guys or like you know into them, but like ऐसा औरत men के साथ नहीं कर पाती and same like लड़के लड़की के साथ नहीं कर पाती, like क्योंकि we opposite are end के साथ- very occupied with हाँ. what we are thinking ना. सपोज कि मेरा कोई दोस्त है, मैं तो उसे दोस्ती मान रही हूँ, तो मैं उसी में ऑक्यूपाइड बट लेकिन यार आई फील लाइक पता चल, क्योंकि मुझे भी पता होता है कि इवन इफ आई एम फ्रेंड्स विद समवन आई नो व्हेन द गाय इज इनटू मी, बट आई विल मेंटेन द डिस्टेंस, आई नो माय But बाउंड्रीज। जब ये ज्यादा पता चलता है like if you are single then you would 100% know देयर इज समवन। अरे आंटी है भाई, कोई चोर नहीं आ रहा है भाई घर में, आंटी ठीक है अब बस आप ही हो ना भाई, कोई चोर नहीं आ रहा है भाई, दो नीचे कुत्ते खड़े हैं भाई, खा जाए भाई वहां से मेरे को शैडो दिखी, वैसे जी मुझे भी लगा था कि वो कोई होंगे या तो वो अंकल होंगे जो भैया है। मुझे मैं तो पहली बार मैं दूसरी बार आ रही हूँ इस घर में, मुझे क्या अरे पता भाई भाई. ओके हाँ तो क्या क्या बात कर रहा था मैं, क्या बात कर रहा था ये? क्या बात कर रहा था तू? अरे समथिंग लाइक अगर तू सिंगल है ना तुझे 100% पता होगा कि तेरे पे कोई हिट कर रहा है, बट अगर तू रिलेशनशिप में है जो तेरा माइंड है ना, तुझे पता है कि अभी ये इसमें इसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ऑल माय अटेंशन इज गोइंग टू हिम, तो तू उसके बारे में सोचती ही नहीं कि उसकी जो इंटेंशन है वो कब दोस्त से आगे बढ़ जाए, हो सकता है ऐसा. Possible। इसलिए बट पता है मतलब जब भी कोई लड़का मेरे को टेक्स्ट करता है ना, हाँ. आई ऑलवेज नो द इंटेंशन, For some reason मुझे भी ऑलवेज पता होती है। ऑलवेज हाँ। मतलब भाई जब कोई पता है बंदा इसलिए
it's not about like तुझे intention पता होता है, it's about how the dating life is currently is right now, कि कोई लड़का किसी लड़की को आजकल ऐसे दोस्त बनने के लिए ही slide in नहीं करेगा DM. He has an या तो तुम्हारे बचपन से दोस्त हो, unless तुम्हारी बचपन से दोस्त है ना, कोई भी लड़का willingly You are not attracted. towards you. हाँ. Like if we actually like you're not fit into his description of an ideal girlfriend, then he would definitely be a very good friend. But पता है क्या, तुझे पता है when for example if a guy has texted me हाँ. and वो मुझे regular text कर रहा है but I have set a boundary, उनकी ego पे चली जाती है बात. नहीं, that only happens when the man is himself very insecure. ओके सो अभी जैसे भी पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था हुकअप्स वगैरह के बारे में, तो मैं तेरा पर्सपेक्टिव भी जानना चाहती हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां हुकअप करते हैं हाँ. तो लड़कों को फीलिंग्स नहीं आती बट लड़कियों को आ जाती है. हाँ. तो ऐसा क्यों होता है कि लड़कों को क्यों नहीं आती? क्या पर्सपेक्टिव है तेरा हुकअप्स की तरफ? I think so because it's like इसमें भी वही चीज आ जाती है, the man chasing factor, and like उनको अगर कोई चीज बहुत easily मिल जाती है, बट ऐसा क्यों होता है? बिना किसी efforts के like ऐसी चीज मिल जाती है, then it's like अब तो मिल गई भाई, क्या ही है. मे बी ऐसे कुछ evolutionary psychology से भी also it depends on the fact that how the emotionally stunted that guy is. Like let's take me for example. Like जब मेरा वाला फेस चल रहा था, I was like fuck भाई, like so like emotionally stunted वगैरह, it's like emotionally numb, भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने आप से. That the narcissism factor that kicks in, because again social media is to blame for it. When you get validation from multiple persons ना, then you're like भाई अगर मुझे 4 लोगों से मिल रही है तो मैं इस पे क्यों सेटल करूं? I think इसकी वजह से. To be very honest, मैंने कभी अपने किसी हुकअप को ऐसी कन्वर्सेशन करी नहीं. All I did was lie. देख लो कोई बात उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड देख रही हो यार ऐसा क्यों होता है कि कुछ लड़कियों के लिए लड़के बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि मतलब मैं तो इसके लिए सब कर दूंगा, बट फिर कुछ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता. हाँ, तो आई थिंक दैट्स लाइक अगेन आई वुड से क्योंकि लाइक अंदर से आता है, लाइक अंदर से यू गेट सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर. लाइक ये तो लड़कियों में भी होता है. नहीं मतलब मेरे साथ क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी के साथ मतलब फॉर मी रिलेशनशिप और कमिटमेंट इज लाइक अ डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन दैट आई एम टेकिंग, कि जिससे अगर कोई भी मेरे साथ है, कोई भी ऐसे लड़का, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि ओके ही इज द वन आई एम टॉकिंग टू. मेरी सारी कमिटमेंट, मेरा सारा प्यार इसके लिए ही है, चाहे मुझे उतनी फीलिंग्स, इतना कनेक्शन नहीं है, बट मैं इसके लिए सब एफर्ट्स डालूंगी, सब करूंगी. तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि लड़के क्यों नहीं करते ये. लड़कों के लिए नहीं होते कि मेरे को फीलिंग्स है. हाँ. तो अगर जब फीलिंग्स नहीं होती तो वो बिल्कुल भी ट्राई ही नहीं करते लड़की का, चाहे लड़की कितनी भी अच्छी हो ना हो. Yeah, I think like the subconscious mind, because like I feel like for a guy he has to be attracted towards the feminine energy that the girl puts out, and sometimes like not necessarily the fault of the girl, it's the fault of the guy that he doesn't feel the same about her. I think it happens the other way also, क्योंकि like मैं तेरा ये नहीं कह रहा, but कुछ ऐसे जैसे like वो जो मूवी थी 500 Days of Summer, तो उसमें that guy was doing everything for her, बट उसको नहीं चाहिए था. उसका तो ये था कि मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी, I'll never get married, I'll never be in a like committed relationship. Then 6 months after they ended, she got married. तो exactly somebody just have to click भाई, like click होना होता है. True. I think it वो तो दोनों की तरफ होता है. Like for example, if I'm talking to someone, शुरू में लगता है कि ठीक है, but फिर वो नहीं आती feelings, तो फिर अब how can you possibly force it? It's better to just मैं fake क्यों करूँगी? I guess मैं compatibility ज्यादा मेरा बड़ा फैक्टर होगा. आई फील लाइक कि अगर मैं किसी के साथ मुझे फील हो रहा है कि यार पता है ऑनेस्टली कंपैटिबिलिटी तो पहले ही आ जाती है ना कि नहीं आती. लाइक फॉर एग्जांपल कंपैटिबिलिटी मैं उस चीज में नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जैसे यू नो कुछ जैसी मेरी थी सिचुएशनशिप्स बोल देते हैं चलो, कि तो उनके साथ मेरे को ऐसे स्टार्टिंग में अच्छा लगता था, फिर जैसे टाइम निकलता फिर लगता था ओ शिट ये तो मुझे पसंद ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कि इफ आई एम सीइंग अ फ्यूचर विद समवन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो मैं चाहती ही नहीं कि मेरे बॉयफ्रेंड में ये सब क्वालिटीज हों, वो ऐसे एक्ट करे सर्टेन सिचुएशंस में. तो ऐसे मैं बोल रही हूँ कि इस चीज में फिर आई थिंक मेरे लिए कंपैटिबिलिटी ज्यादा. अगर कोई लड़का है जो मेरी हर चीज में मैच कर रहा है,
जिस हिसाब से मुझे चाहिए चीजें वैसी जा रही है, तो आई फील लाइक मैं उसका कंटिन्यू कर लूंगी, चाहे मुझे फीलिंग स्टार्टिंग में इतनी क्यों ना। आई फील लाइक लड़कियों को फिर भी ओवर टाइम फीलिंग्स आ जाती है, लड़कों का उड़ जाता है। आई थिंक सो यार, फिर लड़कों को वो आता है कि उनको ऐसे लगता है उनका उड़ गया, क्योंकि उनको बट द मोमेंट यू रियलाइज द गर्ल का भी लौंडे का भी उड़ गया ना, एंड शी इज गॉन, लाइक शी इज गॉन फॉर गुड, यू लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम द गाय इज फक्ड, लाइक उसकी मेंटल स्टेट इधर उधर तबाह। एंड लाइक आई थिंक सो तमाशा मूवी में बहुत अच्छा डिपेक्ट करा हुआ है कि कैसे लाइक व्हेन दीपिका पादुकोण रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड ही इज लाइक you're not that guy, fall in love वगैरह वगैरह, he got like so like he started, तब I think so imposter syndrome kick in करता है काफी ज्यादा, because I feel like तुम्हें ऐसा उस लड़की ने तुम्हें इतना बिल्डअप कर लिया होता है इमोशनली वगैरह, when you realize that she no longer likes you, then you think that fuck, मेरी जो अपने अंदर की पर्सनालिटी थी, जो इमेज थी, जो मेरा इतना सारा कॉन्फिडेंस था, वो इसलिए आया था क्योंकि इसने बिल्डअप करा था, इसने मुझे इतना ज्यादा वैलिडेशन दी वगैरह। एंड द मोमेंट वो मिरर टूटता है, यू रियलाइज फक, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इम्पोस्टर सिंड्रोम हिट करता है कि मैं तो ये हुई नहीं, मैं तो ये सब था, मैं सब सोचता था क्योंकि उसकी वजह से सोचता था। It's so fucked up कि मतलब the amount of validation I've given to guys that I shouldn't have is so real, so real. And I'm telling you, people talk about like weed and everything, like substances as an addictive drug. Validation itself is a very addictive drug. Like थेरेपी जाओ सारे। भाई मैंने इसकी बात सुनी थी, भाई थेरेपी सबको जानी चाहिए, थोड़ा बहुत चले जाओ, थोड़ा आई फील लाइक कोई आई थिंक सो थेरेपी शुड बी लाइक मैंडेटरी भाई इन स्कूल्स वगैरह। Yeah, but even after that, you know, there are people जो थेरेपी लेते हैं, but they still do not work on themselves. That is so then that's like a होते हैं ना ऐसे तो। यार ऐसे मत बोल यार, तो नहीं, गाली वाली मत जैसे मुझे ऐसे। लगता है ना कि थेरेपी भी तभी काम करती है जब When you're खुद खुद काम से करना willing to चाहते हो। try। yes। भाई ऐसे तो लाइक जितने भी ऑलमोस्ट सारे सीरियल किलर्स होते हैं, जेफरी डामर, रिचर्ड रेमिरेज, इन सबको जेल तो ना, जिनको तो असाइलम मिला था ना कि लाइक प्ली फॉर इंसैनिटी क्यों करते हैं, कुछ दे गेट लाइक मेंटल ट्रीटमेंट वगैरह, उसके बाद भी ट्रीट नहीं होते बिकॉज़ लाइक द माइंड इज डामर ने थोड़ी करा था प्ली फॉर इंसानिटी। डामर ने किसी ने तो करा था, वैसे रिचर्ड रेमिरेज ने करा था प्ले फॉर इंसैनिटी। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को भी तेरी पूरी सिचुएशन बताई थी, Okay. मैं उससे डिस्कस कर रही थी। Okay. लड़का था वो, पूरी नहीं बताई थी, मैं थोड़ी बताई थी कि मतलब ऐसे तू कैसे अपनी एक एक्स के साथ फिर भी दोस्त था when you were in a relationship and you could clearly see कि how she was affecting your relationship but still तूने नहीं कट ऑफ किया, तो वो क्यों होता I है? think that was just like I was somehow that the people pleasing factor in me, that I didn't want to hurt her feelings and didn't want like I wanted like some obviously एक ही स्पेक्ट्रम पे रहे, कोई ऐसे सड़े ना मुझसे, कोई फालतू का कलेश ना हो, just that thing in me I was like कि भाई जितना ज्यादा stretch out कर सकता हूँ चलते रहने दो, but I should have like ended things much quicker with that person, so maybe I could have stayed in my relationship much earlier। क्या हुआ? कौन सा जूता? अच्छा भाई ये कट कर देना। हाँ तो एक्स हाँ तो आई थिंक द पीपल प्लीजिंग फैक्टर इन मी कि लाइक मैंने आता था कलेश हो वगैरह, एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम शी वाज नॉट जस्ट मेनली एन एक्स, शी हैड लाइक मोर ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड like bond with me also, and she knew everything about me, so I was like afraid to let the person who I was with take her place. That is like my mental like issues that I had, but then I realized I was like one of the biggest mistakes I should have done. I should have set my boundaries earlier, and now that I look back, I realize how much I hurt that person by not doing some slightly with the bare minimum efforts थे जो मुझे करने चाहिए थे, जो मैंने नहीं करे, तो क्या ही है, it is what it is. Be better. Be better. Men out there. Men out there, भाई be fucking better, भाई treat your girlfriends, भाई love your अबे girlfriends. तुम्हें बोल रही है ना वो हाँ। कि कर ले एफर्ट्स डाल ले, डाल भाई कर लो, डाल, क्योंकि तू वो छोड़ regret के चली गई करेगा, ना। तू regret करेगा अगर कोई, I'm telling you, if a girl is genuinely crazy in love for you ना, she is not gonna leave you ever, like unless you give her a reason to leave. True.
unless no girl will ever who is truly in love with that person. यार but नहीं there are क्या true. नहीं होता अगर तू like also physical intimacy is very important. अगर if you are like physically good, physical intimacy तुम्हारी solid है and that girl is crazy in love for you, there are no reason unless you give physical intimacy very important है it is very important. इतना भी नहीं है कि नहीं it is कि इसके लिए छोड़ दूंगी मैं, ऐसा तो नहीं यार. ऐसा ना होता है like I feel like नहीं I'm telling you अगर ऐसा नहीं भी होता हो ना, हर लड़के को इस चीज की वजह से इनसिक्योरिटी होती है. हर लड़के को because I feel like इतने ज्यादा केसेस देखे हैं ना, जैसे like आजकल YouTube इंस्टा पे सारे सोशल मीडिया पे इतनी केसेस आते हैं. Because like जैसे अभी वो देख लो, जब वो अतुल सुभाष का केस हुआ था कि she was having affairs with other people and she was blackmailing him वगैरह, तो इतने वो होता है like मर्दों में फिर ऐसे वो विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है कि भाई इससे तो मुझे पहले हनी ट्रैप करा, अभी किसी और को हनी ट्रैप करके कि मुझे ब्लैकमेल करेगी, मुझसे एलिमनी ले लेगी. Because I feel like सोशल मीडिया ने unnecessarily women hate बना दिया. True वो तो है. हर कमेंट सेक्शन में जाओ तो यही चल रहा है. R word is this like unnecessarily women को hate करना just cause like as always like few bad apples की वजह से, जबकि they don't realize कि like औरतें बहुत ऐसी कम होती है और मर्द ज्यादा होते हैं. Like there are more cases of men cheating than women cheating. Right. Also वो another reason आ जाता है कि like the men cheat for lust and like women cheat when they have lost their feelings वगैरह. ऐसा I think तो नहीं है यार, मुझे लगता है कि ऐसा लड़कियां चीट तभी करती है जब उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई हो. कोई जैसे मैन नहीं खत्म की बात नहीं होगी. आई फील लाइक इफ समवन आउट देयर is इज गिविंग doing देम हाँ, द वैलिडेशन दैट दे वांटेड फ्रॉम देयर बॉय. बट इधर वे भाई अगर तुम्हारा लाइक 10 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना और तुम सब रोज बात कर रहे हो, मिल भी नहीं पा रहे, तब भी if you are giving the woman everything she wants, they just for like emotionally तुम उसे बैक कर रहे हो ना, या तुम उसके साथ हो वगैरह. Because भाई women are very vulnerable, very fragile and everything and very emotional, and if you are doing कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मेरे होते किसी कोई चीज चिंता नहीं है, नहीं जाएगी भाई, नहीं जाएगी. बस इतना सा करना होता है कि अच्छी होगी तो नहीं जाएगी. अच्छी होगी also if the woman is like really into you, I mean yes वो नहीं जाएगी unless तुम fuck up करो. Don't be me. Don't be me. coming from personal experience. Don't be me, right? Suppose you're talking to someone, would you want to know their past? Like for me it like I don't think so इसको मैटर. I think so मेरे पास इसको ये इतना जज किया है मैंने. Like ये क्या जज It's करेगा? not about that. in gender perspective, like in gender view, I feel like past does matter, but to an extent. Like it's like a gamble. It's like a head and tails coin. It's like a gamble. It's like how you gamble. It's like, are you willing? If you think that she might be the one, so are you willing to put her past aside to take a gamble that she might give you the utter happiness you seek for in a relationship, or तुम like societal view and the judgmental view and लोग क्या बोलेंगे उसकी से तुम गिवन कर दोगे? I think I would say कि मैं भी शुरू में like ऐसे ही था कि like past वगैरह वो सब, but I'm not saying मेरा अभी तक ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं इस लड़की का किसी का पास्ट मेरे जितना fucked up हो, and I hope honestly ना हो. But then again अगर कभी होगा भी ना, तो if like again ये सोसाइटल व्यू कि लोग क्या बोलेंगे वगैरह, इंस्टा क्या सोचेगा, तो हम लाइक दूसरों के पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना कि हम खुद की खुशी में भूल जाते हैं. एंड इफ दैट गर्ल इज जेन्युइनली मेकिंग यू हैप्पी एंड यू थिंक दैट ओके दिस पर्सन इज नॉट द सेम पर्सन एनीमोर, फक इट भाई, क्या फर्क पड़ता है? एक रिलेशनशिप में क्या ऐसी चीज होगी तो तेरे को ज्यादा इनसिक्योर कर सकती है? यार आई थिंक सो रिलेशनशिप में फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव से चीज मुझे जो इनसिक्योर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपनी रिलेशनशिप में कभी इतनी इनसिक्योरिटी फील हुई नहीं. बिकॉज़ यू आर द वन मेकिंग देम इनसिक्योर. fair enough, but to be very honest, मुझे कभी ऐसा touchwood experience हुआ नहीं when I was insecure about it. Obviously अगर let's say in my past relationship, अगर वो चीज तभी हुई थी when an incident happened when the person I was with went to see the person she liked before me
तो तब मुझे हल्का सा ऐसे हुआ था, जस्ट लाइक दे वर सेम द सेम कॉलेज वगैरह एंड दे वर फ्रेंड्स, सो शी जस्ट वेंट टू सी him वगैरह, and that was the only instant when I felt slight secure, but then I had so much trust in that girl that I know that she would never, right? She would never. So it's like I had like some surety, but that was like only like 10% insecurity. So in my, I've been very trust is the game. Yeah. क्योंकि अगर वो पता है अगर शुरू से ही है ना, you have been cheated on, तुम्हारे तो वो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तुम्हें हर टाइम इनसिक्योरिटी होगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे देखे जिनके पहले भी चीटिंग हुई होती है, they let that happen to themselves वगैरह। ट्रू। कुछ मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, because I feel like फिर उसमें like थोड़े से वो होता है like fool me once, shame on me, Fool me twice, shame on you. Fool me 3 times, fuck the pieces. load the job a little अरे bit. भाई Average J Cole. मैं कुछ पूछने वाली थी, मैं कुछ भुला दिया। Why good men? Why would men? Why are men? Why are men? Why? What to do? What do you do, bro? Yes, we are emotionally stupid. Now what to do? What do you do? What makes a man finally decide to commit? I think the morning wood. I think. पीछे आके बोलना, थोड़ा तो कट रहा है। I think when he has that connect that he can be like naive as a child and as like mature and intellectual with her. Do men play hard to get? No, I mean I don't think, in my perspective, no. कैसे? In my perspective, no. It's like मुझे तो लगता है हाँ। I feel like they don't. I feel if I genuinely like a person ना, I'm gonna be like भाई देख, I'm gonna be an open book. भाई मुझसे नहीं होता वो nonchalant mysterious वाला, and I'm gonna be like भाई this is me, I like you, the ball is in your court. If you don't, then क्या है ये भाई? I feel like But I've seen guys. मतलब मेरे साथ नहीं, but I've seen. नहीं, I feel like if they're genuinely interested, they won't play hard to get. If they don't like the girl as much If they're not sure, हाँ, then they might play. कि like भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तुझे तेरे ऊपर है, balls in your court. Okay, so now we're gonna do a rapid fire round जिसमें हम श्रेय से 4 क्वेश्चन पूछेंगे और 4 फटाफट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, फाइनल एंड, दैट्स इट। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सोसाइटी शेप द वे मेन हैंडल लव एंड रिलेशनशिप? सोसाइटी फक्स द वे मेन हैंडल लव एंड रिलेशनशिप, क्योंकि एक सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह प्लस इवन लाइक सोशल मीडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है सोसाइटी को, इसमें जब से ये एंड्रयू टेट वाला सिग्मा माइंडसेट वाले ये मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, ब्लू पिल रेड पिल, दे लाइक भाई और लाइक वुमेन आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे लाइक भाई व्हाई आर यू गाइस सो अफ्रेड टू शो योर इमोशंस टू द पर्सन you actually like? Why can't you fully express your love towards them? That's all they want. I wish I could have realized this earlier. Next question. So, what is your perspective on the whole the male being the provider in the relationship? I mean, yeah, again, that's like perspective, like that's another perspective. Like I would say as a man, you do subconsciously feel like, okay, I want to be the everything for this girl, I want to be the pillar for this girl, I want to provide her with all the needs and everything. But if a woman wants to do that, then fine भाई, ये अगर कोई ऐसे लौंडा ऐसे बोले कि उसे पैम्पर होना नहीं पसंद, that's false भाई, कि किसी भी लौंडे का ऐसा नहीं है जिसे पैम्पर होना नहीं पसंद। तो would you suppose कर कि would you marry a woman who is unemployed? Sure, yeah, why not? And would you marry a person who is employed but you are unemployed? I mean, I would say that's like the, फिर वो उसके ऊपर आ जाएगा। नहीं मतलब but will it affect your ego? No, I would be like, I think that would motivate me more. Like from my perspective, it would motivate me more. Bhai, this woman is so hardworking, and I am currently unemployed. I need to put myself back on my feet. नहीं, for example, तू willingly नहीं कर रहा है. For okay, she is earning really fine, but कि तुझे जरूरत ही नहीं है करने की. कि generational wealth है. हाँ, suppose generational wealth है, वो बहुत अच्छा कर रही है, तो अगर तेरे पास ये ऑप्शन है कि यू डू नॉट डू एनीथिंग, घर जमाई, हाँ घर ठीक है, वो हाउस हस्बैंड ठीक है, वुड यू चूज दैट ऑप्शन? I mean,
depends. Like if she is okay with it, yeah. Okay. She's okay with it, yeah. I'd be the homemaker. Why? Who the fuck gives about gender norms or who the fuck gives about gender roles? Why? I love to cook. I love to do everything. Oh हाँ, he cooks really good. Yeah, thanks. हमने खाया है. तो वो तो भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई my future person I would want that girl to not know how to cook क्योंकि मुझे अपने हाथ से खाना बहुत पसंद है and भाई मुझे लोगों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है. Okay, Yeah. next question. तो how much do you think your childhood has affected your A relationship lot. style? A lot. Like I won't go much deeper into that, but I would say a lot because like I don't know how to say it in a subtle way. The way your parents were in a relationship, because that's like the first idea you grow up as a relationship and how the relationship is. You think it's not gonna impact you, but that subconsciously impacts you a lot. I would just leave it at that. I feel like if you constantly feel कि your relationships are not working out, maybe थोड़ा सा reflect, see how your ये मुझे इस चीज parents ने रियलाइज relationships- कराई थी. इस चीज ने इस- ये चीज इसने realize ये चीज इस बंदी चीज ने- ने ये इस बंदी ने रियलाइज कराई थी. Yes, हाँ देखो तो लिटरली कॉल बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको बोला कहता ओ फक मैंने तो ये सोचा ही नहीं मैंने सोचा ही नहीं एग्जैक्टली भाई इसलिए एक लड़की दोस्त होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छी लड़की दोस्त होना बहुत लड़की. इम्पोर्टेंट. बहुत मारता है मुझे बेटे अब लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो हाँ, मैं पूछ रही थी कि सपोज तेरे बच्चे हैं तो तू उनको ऐसी क्या हाउ विल यू पेरेंट देम इन ऑर्डर टू बिकम And make sure that my relationship with their mother, my wife, is like very non-toxic. It's like something they can look up to. Like, you know what? I have the perfect goal for a relationship. That's my parents. Like, I want to be in love with how my dad is in with her, with my mother, or like for my daughter, like how my mother is in love with her dad. वगैरह. So I think the first thing starts there, and then I'm gonna be like, भाई देख, तू जो सोसाइटी बोले ना क्या कहता है अगर तुझे कोई पसंद है ना fuck it then go for it, do everything you want and end में ये मत सोचो कि fuck I did everything I want and still rejected and still got rejected. You think that तूने अपना बेस्ट दिया. Don't be attached to the result, be attached to the And I think work. this goes both ways. हाँ 100% yeah. कि जस्ट कि ये मत सोच कि वो आई या नहीं आई उसने जो पसंद करा है नहीं. जस्ट गिव योर बेस्ट. लाइक कर्म लाइक फल से अटैच मत हो, कर्म से अटैच हो. I would just leave it at that. quoting Krishna. Quoting Krishna. Yes. Bhagavad Gita. Yes, so guys, this is it for today. Subscribe to my channel. Subscribe to Riri Rants. Yes. Bye-bye. Bye.